Welcome to our official website, YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Parth Wadhwa from IT department, going to explain you further about the stack. Now, the first thing is here, that is a recognize algorithm. Now, how to recognize a particular string, we can say, or we can say what is the grammar that we are using for that. So first thing here, it is written that we can say here that L is equal to WCWR. C is what? The C is the alphabet and W is the string that we are using before, and WR means the reverse of that string. So that W, the characters in this W is belonging to this A comma B, that is A and B characters are used in this W here. So here it's also written that W raised to R is the reverse of that W, that is the string. So examples of the string is given here, that the valid strings are, suppose AB is given here before C, so reverse will be for will be the BA, and if double A double B is given here before C, then double B double A will be the reverse for that. And if invalid we are seeing that, so invalid double AB is given here, then it is written that double AB, that is not the reverse, so that's why it is invalid. So here the given input string that is named as a string given here on the alphabet A comma B comma C. So three characters are used in this, which contains a blank in its rightmost character position. So function next character here that we are using, that is returning the next symbol in the string. So this algorithm determines whether the contents of the string belong to the above language or not. So here the vector S represents the stack, and top is the pointer to the top element of the stack we are saying. So next now, so this is the algorithm how this particular part is happening that we will see here. So first of all, top value is given 1. In this, the S top is given with the value C given here. So now we have to get and push the symbols until the either C or blank is encountered, we can say. या तो C आ जाएगा या फिर blank आ जाएगा, तब तक हम लोगों को symbols को enter मतलब उसके अंदर push करना है, मतलब insert करना है कोई data. So first here the next is given for the next character here, that is a string. So repeat while next not equal to C. That means what, कि next की वैल्यू जब तक C नहीं आ जाती तब तक वो कंटिन्यू रहेगा. सो नीचे लिखा हुआ है इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू दैट अपोस्ट्रॉफी के सिंगल अपोस्ट्रॉफी के बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, मतलब ब्लैंक अगर होगा तो क्या लिखना है, देन वी हैव टू राइट जस्ट इनवैलिड स्ट्रिंग. एल्स क्या करना है, अगर वो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो अगर वो वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसको पुश करना है. एंड वी हैव टू एस टॉप नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वैल्यू में उसको पुश करना है सी के बाद जो होगा. सो नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर अगेन. नाउ वी हैव टू स्कैन. सो ये बार बार जब तक रिपीट करना है जब तक कैरेक्टर्स हम लोग एंटर करा रहे हैं, जब तक ब्लैंक नहीं आ जाता, ठीक है, तो या फिर सी नहीं आ जाता तब तक उसको एंटर करना है. सो नाउ scan characters following C, compare them to the characters on stack here given. So here what we have to do, repeat while S top is not equal to C. So we have to compare, मतलब S top की वैल्यू जब तक C नहीं आती तब तक हम लोग को ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, नॉट इक्वल टू C. सो हियर द नेक्स्ट कैरेक्टर, तो इसमें क्या करना है, जो भी x होगा तो उसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू जो हम लोग डिलीट करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, तो जो भी होगी वो x के अंदर जाएगी. सो x इज इक्वल टू द पॉप s कॉमा टॉप, मतलब टॉप को जो भी मतलब वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोगों को उसको x के अंदर डाल देना है. सो जब तक c नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी. एंड इफ x नेक्स्ट नॉट इक्वल टू x, then we have to write the invalid string now, and after that we have to do the exit in this particular loop structure. After that, next step is next symbol must be blank. Now next symbol must be blank, so next here again given as a variable, so in that we have to take that, but next character string we have to take. So here we have to check whether it is equal to blank or not. If it is equal to blank, then we have to write the valid string, and else we have to write the invalid string. So this is how the particular algorithm is happening.
So next, so here how this particular part is happening that we are seeing here. So first of all we have to initialize a particular stack with the letter C on the top. हम लोग देख सकते हैं 1 के आगे यहाँ पे स्टैक के कंटेंट में C लिखा हुआ है, ठीक है ना. सो कैरेक्टर कंटेंट, तो इनपुट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज ABCBA, फिर उसके बाद जो है ब्लैंक स्पेस है, राइट. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, उसमें क्या करना है, सी दैट इज अ नेक्स्ट को लेना है. नेक्स्ट वी हैव टू टेक एज सी. सो नेक्स्ट जब तक सी नहीं आता तब तक हम लोगों को वो चीज़ कंटिन्यू करनी है, राइट, इसके अंदर. सो नाउ हियर व्हाट इट विल डू, इफ इट विल चेक नेक्स्ट की इक्वल टू ब्लैंक है या नहीं है. ब्लैंक होगा तो इनवैलिड आएगा, अदरवाइज वो पुश करेगा. तो हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में टेबल दिया हुआ है. तो ए आया सबसे पहले, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ए, तो ए को उसके अंदर पुश कर दिया तो सी ए हो गया. अब बी आया तो बी आया तो वापस से क्या हो गया, स्टार्टिंग मतलब सेकेंड एलिमेंट इज बी, तो अब CAB हो गया. नाउ आफ्टर दैट सी आया तो सी के बाद क्या करा है उसने, वहाँ पे वो स्टॉप कर दिया, बिकॉज इट शुड नॉट बी इक्वल टू सी, राइट. तो CAB आ गया. सो दैट इज वो क्लियरली वही लिखा हुआ है. नाउ वी हैव टू स्कैन द कैरेक्टर्स फॉलोइंग, compare them to the characters on the stack. So here the repeat while s not that s top की वैल्यू हमेशा स्टैक मतलब टॉप जो एलिमेंट का टॉप वैल्यू है स्टैक का, उसको वो इसी के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो हियर वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वैल्यू. तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनपुट के अंदर जो सबसे लास्ट वैल्यू ए है वो उसको नेक्स्ट में लिया हुआ है. सो हियर वी हैव टू टेक फ्रॉम द लास्ट पार्ट. सो अब क्या करना है, उसको धीरे धीरे पॉप करना है. सो नाउ द थर्ड पार्ट वी आर सीइंग दैट द बी पार्ट इज गिवन. सी के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, बी है. तो बी मतलब ए वाला पार्ट है वो क्या किया है इसने, मतलब उसको रिमूव कर दिया है, राइट. ए पार्ट इज रिमूव. सो हियर फर्स्ट ए इज टेकन, तो ए पार्ट दिखा है तो ए को पॉप कर दिया, उसको एक्स में ले आए. फिर बी को लिया है तो बी को फिर पॉप किया, फिर एक्स में ले आए. फिर उसके बाद फिर ए अगेन आ रहा है. सो दैट इज ए को मतलब फाइनली क्या हुआ इसके अंदर, तो पॉप एलिमेंट फाइनली लास्ट में क्या बचा, ओनली सी बच गया. सो दैट इज द थिंग दैट इज डन हियर. आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेप, दैट इज नेक्स्ट सिंबल मस्ट बी ब्लैंक लिखा हुआ है. सो लास्ट वाला जो पार्ट है वो ब्लैंक को इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट. सो इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक देन वी हैव टू जस्ट राइट द वैलिड स्ट्रिंग, एंड एल्स राइट वी हैव टू राइट द इनवैलिड स्ट्रिंग. तो लास्ट में ब्लैंक आ रहा है मतलब वो वैलिड स्ट्रिंग देगा. So now you can do this algorithm for this is the following exercise that you can do also for this, जिसमें क्या दिया हुआ है, input character string is of the form a raised to I b raised to I where I should be greater than equal to 1, right. I should and a number of a should be equal to number of b. ओके. सो आई शुड बी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ए आई मतलब ए को 2 बार यूज़ कर सकते हो, 3 बार यूज़ कर सकते हो, जितनी बार ए को यूज़ करोगे उतनी बार बी को भी लिखना है. So that is the thing we have to write the algorithm for this to determine if an input character string is of the form of that or not. तो उसमें A और B दोनों का काउंट करना होगा, दोनों की मतलब जो जितने बार यूज़ हुआ है वो दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड स्ट्रिंग बोलेगा, राइट. सो हियर नाउ द पॉलिश एक्सप्रेशन. तो पॉलिश एक्सप्रेशन में क्या होता है, एंड देयर कंपाइलेशन हियर वी आर सीइंग द फर्स्ट ऑफ ऑल द इनफिक्स पार्ट वी आर सीइंग हियर. इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स 3 अलग अलग पार्ट होते हैं. इनफिक्स का मीनिंग होता है कि 2 वेरिएबल के बीच में अगर ऑपरेटर आ रहा है तो दैट इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो हियर वी कैन सी अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल जो बोलते हैं, द बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले आता है. सो B इंटू सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डन, देन D इंटू E देन इट विल बी डन. तो 1 और 2 जो पार्ट है वो पहले ये दोनों होंगे, ये दोनों इवेल्युएट हो जाएंगे. उसके बाद फिर हम लोगों को प्लस वाला पार्ट करना है. तो प्लस वाला पार्ट कौन सा होगा, तो B इंटू सी जो हो गया तो उसके साथ A को प्लस करेंगे तो वो थर्ड पार्ट हो जाएगा. और फिर जो फाइनल उससे मिलेगा तो वो पार्ट को हम लोगों को वो 2 वाला जो पार्ट है D इंटू ई उससे प्लस करना है, ठीक है. D इंटू ई का जो भी आंसर आ रहा है उससे प्लस करना है. तो फाइनली वी विल गेट द पर्टिकुलर इवेल्यूशन एंड आंसर फॉर दिस. So here the repeated scanning from left to right is needed as the operators appears inside the operands, we can say. So here the repeated scanning is avoided if the infix expression is first converted to an equivalent parenthesis free prefix or suffix, we can say. Suffix is a postfix expression. अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर जो होता है वो 2 वेरिएबल के बीच में या 2 ऑपरेंड के बीच में आता है. जो A B C D E लिखा है ये सब ऑपरेंड है. सो जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हम लोग डाल के उसको इवेल्यूएट करते हैं.
अब इस प्रीफिक्स में क्या होगा, वही चीज़ ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेंड से पहले आएगा, दो ऑपरेंड होंगे उनसे पहले अगर ऑपरेटर आप लिखते हो दैट इज़ अ प्रीफिक्स पार्ट। और पोस्ट फिक्स वाला जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, दो ऑपरेंड होंगे उसके बाद अगर आप ऑपरेटर लिखते हो दैट इज़ अ पोस्ट फिक्स पार्ट हियर वी कैन से। So here, so first of all, this type of notation is known as, ये Polish notation को दूसरे और भी नाम से बोल सकते हैं, that is a Lucas-Sivis we can say notation, or reverse Polish notation we can also say, due to the Polish logician जैन लिक्विज, मतलब ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये चीज़ पूरा पूरा एनालिसिस और पूरा डिस्कवर किया है। And here in both the prefix and postfix equivalents of an infix expression, the variables are in the same relative position we can say. So the expressions in the postfix or prefix are parenthesis free, and operators are rearranged according to the rules of precedence for operators we can say. So here this is the part in which we can see the infix part भी दिया है, postfix part भी दिया है और prefix part भी दिया है। जैसे a लिखा है तो a में तो कोई ऑपरेंड है ओनली, ऑपरेटर तो कुछ दिया नहीं है। सो और postfix भी a होगा और prefix भी a होगा। अब सपोज सेकेंड वाला देखते हैं, जैसे a प्लस बी लिखा है तो postfix में क्या होता है, ऑपरेटर हमेशा बाद में आता है इसलिए a b प्लस लिखेंगे, और प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है इसलिए प्लस a b लिखा जाएगा। थर्ड वन वी कैन सी हियर a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब इसमें कोई भी मतलब दोनों का जो इम्पोर्टेंस है, दोनों का प्रेसिडेंस है, दोनों सेम है, राइट। सो इसलिए प्लस प्लस दिया हुआ है, दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले a प्लस बी करेंगे फिर उसके बाद c से प्लस करेंगे, इसलिए ए बी प्लस लिखा हुआ है क्योंकि a और b को पहले प्लस किया है, और जो भी आंसर आता है फिर c से प्लस कर रहे हैं इसलिए ए बी प्लस फिर c प्लस लिखा हुआ है, तो जो भी ए बी का प्लस का आंसर आएगा वो c से प्लस करेंगे। और सेम थिंग इफ वी आर राइटिंग प्रीफिक्स पार्ट, तो उसमें क्या है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले लिखते हैं तो इसलिए प्लस ए बी आएगा, राइट, फॉर द एडिशन बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद सी से प्लस कर रहे हैं इसलिए वो वाला प्लस भी सबसे पहले आ जाएगा एंड सी विल बी रिटर्न आफ्टर, सो दिस विल बी डबल प्लस ए बी सी लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हियर, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ है, मतलब बी प्लस सी को पहले मतलब ब्रैकेट पहले ऑपरेट होता है इसलिए बी प्लस सी वाला पार्ट पहले ऑपरेट होगा, इसलिए बी सी प्लस तो होगा ही, और बी सी प्लस का जो भी आंसर आता है फिर ए से उसको प्लस करेंगे इसलिए ए बी सी डबल प्लस आएगा, राइट। एंड सेम थिंग इफ़ वी आर डूइंग फॉर द प्रीफिक्स, तो बी सी प्लस बी सी को पहले प्लस करना है तो इसलिए प्लस बी सी लिखेंगे, और उससे पहले जो आएगा उससे पहले लिखेंगे, अगर ए से प्लस करना है तो प्लस ए उससे पहले आ जाएगा, तो प्लस ए प्लस बी सी इसका आंसर हो जाएगा फॉर द प्रीफिक्स। नाउ आफ्टर दैट इनफिक्स पार्ट, नाउ ए प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स व्हाट, सो बी इंटू सी तो दिया है तो बी सी को पहले मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है तो मतलब बी सी इंटू आएगा, और फिर जो भी आंसर आएगा ए से प्लस करना है इसलिए ए बी सी इंटू एंड फिर देन प्लस ऑपरेटर इज गिवन हियर। प्रीफिक्स पार्ट में वही चीज़ प्लस ए इंटू बी सी आएगा बिकॉज बी सी पार्ट इज मल्टीप्लिकेटेड इसलिए मल्टीप्लिकेशन देन बी सी इज रिटर्न, और उसी पार्ट से ए को प्लस करना है इसलिए प्लस ए उससे पहले लिखेंगे। सो सेम थिंग इज गिवन हियर फॉर 6 एंड 7। सेवन्थ में हम लोग देख सकते हैं जैसे प्लस में था वैसे ही इसके अंदर सेवन्थ में मल्टीप्लिकेशन का भी सेम चीज़ दिया हुआ है, तो मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से करेंगे, तो वही चीज़ के लिए दिया हुआ है। सो इसमें कैसे हो रहा है तो वो नीचे हम लोग प्रोसेस भी देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया ए प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट बताया हुआ है जिसके अंदर ए प्लस बी को पहले करेंगे तो ए प्लस ए बी प्लस हो जाएगा, फिर सी से प्लस करेंगे तो ए बी प्लस फिर सी प्लस हो जाएगा। सो फाइनली द पोस्टफिक्स पार्ट वी विल गेट इज ए बी प्लस सी प्लस। So this is how we can convert the infix into postfix and prefix. Now how to find the rank of any expression that we have to see here. अब रैंक कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ई इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी माइनस ई प्लस एफ इंटू डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट एच प्लस आई, right? So here what will be the rank that R, now we have to see that note R is given as rank in the for the next line, and rank of variable को हम लोगों ने 1 से मेंशन किया हुआ है, and rank of the binary operators को -1 से ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है, -1 से मतलब इंडिकेट किया हुआ है। सो हियर आर ए प्लस आर प्लस प्लस आर मतलब सबके अलग अलग सब मतलब जितने भी वेरिएबल और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबके आगे क्या लगा दिया है, आर लगा दिया है, दैट इज़ अ रैंक।
अब वेरिएबल जहाँ जहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पे 1 लिखना है, और जहाँ जहाँ पे ऑपरेटर आ रहे हैं वहाँ पे -1 लिखना है, तो वो हम लोगों ने नीचे देख सकते हैं ना। उसके बाद वाली लाइन में उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट 1, राइट। सो एनी एक्सप्रेशन इज़ वैलिड इफ़ द रैंक ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज़ 1। अगर इन सब का टोटल अगर 1 आ रहा है तो मतलब वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या है, वैलिड है, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। So this is how to find the rank of the expression. Now how to convert the infix to postfix expression, that is given here. So here the precedence part is given here. The plus minus अगर आता है तो that will be the first in the input precedence. Then multiplication और division आता है तो वो third में आएगा. Then अगर पावर आता है, रेज टू जो बोलते हैं जो, तो अगर इस टाइप का कुछ आता है तो दैट विल बी गिवन इन द सिक्स्थ पार्ट। आफ्टर दैट तो स्टैक प्रेसिडेंस अलग होगा, तो इनपुट में वो चीज़ 1 हो रही है जैसे प्लस और माइनस, तो स्टैक में वो चीज़ सेकंड है। एंड रैंक फंक्शन उसका -1 होगा एज इट इज़ एन ऑपरेटर। सो प्लस फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया हुआ है, दैट इज विल बी द इनपुट प्रेसिडेंस विल बी 3 एंड स्टैक प्रेसिडेंस विल बी 4। एंड पावर में स्टैक प्रेसिडेंस विल बी 5 एंड इनपुट प्रेसिडेंस विल बी 6। वेरिएबल्स में 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट प्रेसिडेंस विल बी 7 एंड स्टैक प्रेसिडेंस विल बी 8। Then bracket part 9 and 0 that is given. So this is up to 0 up to 9 the precedence part is given, and last bracket that is a 0, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में 0 0 ही आएगा फॉर द स्टैक प्रेसिडेंस। जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो उसके लिए स्टैक प्रेसिडेंस 0 होगा, और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो इनपुट प्रेसिडेंस 0 होगा। नाउ द रैंक फंक्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर जो ऑपरेटर वाला पार्ट है उसके लिए -1 आएगा, और वेरिएबल्स वाला पार्ट है उसके लिए 1 आएगा। So this is how we now reverse polished notation we are saying. So this is what here the given particular part, the info string is infix, that is containing an infix expression which has padded on the right with the bracket. Now this algorithm converts the infix to the reverse polish and gives the result in the string polish notation. The string मतलब string का नाम दिया हुआ है polish, right? So it will be converted into a reverse polish. Now the all symbols जितने भी दिए हुए इसके अंदर तो have the precedence value given by above table. So stack is represented by vector s, and the top denotes the top of the stack. Algorithm push and pop are used for the stack manipulation. Now the function next character represents the next symbol in the given input string now. So here also the next character here we are using, so that is the returning the next symbol in the given input string. Now the integer variable that is rank, that contains the rank of the expression, and the string variable that is the temp, that is used for the temporary storage purpose, here we are using. Now here the algorithm is given here. The first thing we can see here, that in the bottom the particular precedence part is given, and the first is what we have to initialize that top with a 1, and we have to start with the bracket part that we have to push in that top part of that stack. Now second part, initialize the output string and rank count. तो रैंक अभी क्या होगा, अभी को तो ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ भी तो ज़ीरो दिया हुआ है, तो पॉलिश नोटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो पॉलिश में कुछ भी नहीं है, तो रैंक क्या होगा, अभी ज़ीरो होगा। तो गेट द फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट इनपुट सिंबल, तो जो भी इनफिक्स का जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी फर्स्ट सिंबल होगा वो नेक्स्ट के अंदर जाएगा। नाउ अब उसमें क्या करेगा, तो नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो रिपीट थ्रू 7 वी कैन से, मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट हम लोगों को 7 तक कंटिन्यू करना है, राइट। Again and again we have to repeat till what condition. So we will see here. So first of all, how to translate the infix. So for that, for fifth step, we can see here we have to remove the symbols with the greater precedence from stack. Greater precedence मतलब जैसे प्लस और माइनस से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो वो ग्रेटर प्रेसिडेंस है, तो वो उन सबको रिमूव करना है। तो अगर वो उससे बड़ा कुछ आता है तो उसको रिमूव कर देना। तो इफ़ टॉप इज़ लेस देन 1, so we have to write the invalid, and else what we have to do, we have to repeat the while gs top that is given, that is great, that should be greater than the f next, right. The g f top, that it should be greater than the f next given here. So temp, now the temporary part will store the popped part here, जो भी हम लोग पॉप करेंगे वो टेम्परेरी पार्ट में जा रहा है। और पॉलिश के अंदर क्या आएगा, पॉलिश विल टेक द पॉलिश 0 टेम्प नाउ, राइट।
and the rank will be given rank plus r temp given. So again and again it will be repeated till the gs top will be greater than f top. So it will be repeat, this particular procedure will repeat again and again. And here we have to check the if the rank is less than 1, अगर rank less than 1 है, then we have to write the invalid. And after that we have to repeat this again and again till that particular condition is satisfied. Now sixth part, are there any matching parentheses that we have to check? If gs top is not equal to f next, then we have to call push. ठीक है, अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे तो हम लोगों को पुश करना है एस टॉप नेक्स्ट, एल्स क्या करना है उसमें से पॉप कर देना है, राइट. सो गेट द नेक्स्ट सिंबल नाउ. तो नेक्स्ट सिंबल इसमें आएगा तो नेक्स्ट, फिर अगेन उसमें नेक्स्ट आएगा, फिर फोर्थ स्टेप से अगेन उसको कंटिन्यू करेंगे. जब तक वो ब्लैंक नहीं होता तब तक वो कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है ना. तो जितना एक्सप्रेशन है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यूड रहेगा. इज द एक्सप्रेशन वैलिड और नॉट, दैट वी हैव टू चेक एट लास्ट. If the top is not equal to 0 and rank not equal to 1, then we have to write the invalid. अगर टॉप की वैल्यू 0 इक्वल नहीं है और रैंक की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, then we have to write the invalid. Otherwise we have to write the valid string. ठीक है, तो वैलिड है या इनवैलिड है, we can check like this. So here the particular part is given for that. So here the one by one the deep the जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इसके अंदर जो ब्रैकेट पार्ट को लेना है. तो ब्रैकेट पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जाएगा, लास्ट वो ब्रैकेट क्लोज तक जाएगा इसमें. सो इन द राइट साइड वी कैन सी द ट्रांसलेट द इनफिक्स पार्ट. तो रिपीट थ्रू स्टेप 1. तो इसमें राइट साइड में हम लोग टेबल में देख सकते हैं सबसे पहले कंटेंट में क्या आएगा, सबसे ओपनिंग ब्रैकेट आएगा. ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, फिर उसके बाद अगेन वो दूसरा ब्रैकेट भी ले रहा है साथ में, राइट. सो नाउ आफ्टर दैट then a part will be given here. A part जो दिया हुआ है that is the first string that will be content of the stack. प्लस पार्ट दिया है, तो प्लस पार्ट क्या होगा इसके अंदर, प्लस जब भी आ रहा है तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट को पुश करेगा रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में और प्लस को स्टैक के अंदर डालेगा. नाउ बी पार्ट जो आ रहा है तो बी पार्ट उसके अंदर अगेन पुश करेगा वो, राइट. तो बी पार्ट को उसमें पुश किया. नाउ इट इज़ अ वेरिएबल सो इट विल बी नाउ इट विल पुश टूवर्ड्स द रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन. नाउ तो रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में चला जाएगा. आफ्टर दैट पावर आ रहा है. नाउ पावर इज गिवन हियर आफ्टर बी. तो पावर वाला पार्ट आएगा, बी वाला पार्ट सामने जाएगा, पावर वाला पार्ट जो है वो स्टैक में एंटर हो जाएगा. नाउ सी पार्ट विल बी एंटर्ड इन द स्टैक. After that the power part is given again, so C part will be popped and given to the reverse polish expression. और जो पावर वाला पार्ट जो दिया हुआ है अपसाइड एरो, so that will be inserted into the stack. After that D part is given, that will be inserted into the stack. Then the closing bracket is given, that D will be popped and given to the डी के पहले वाला जितना भी होगा 1 by 1 वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, ब्लैक क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो सारे के सारे रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में जाएंगे. सो डी पावर पावर प्लस विल बी गिवन इन द रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन and the rank is given as 1 now, right. So we can check the rank also here. So upside is 0, next is 0, again 0 is given here. So this is last में जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हम लोगों को 1 मिल रहा है. In this way we can continue with the next part also for the multiplication with the next part. So here now it is converted. Now how to convert we have to perform the following operations for this. तो इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में आप लोगों को कन्वर्ट करना है. जो ये पार्ट हम लोगों ने दिया है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये वाला फॉलो करके इसमें मतलब वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है और आप लोगों को खुद से फाइंड करना है. सो यू कैन डू दैट पार्ट ऑल्सो. Now convert the following part into the prefix part that we will see. So that is the next thing. So infix to postfix conversion तो हम लोगों ने देख लिया. So first thing is what, the create an empty stack. फर्स्ट मतलब स्टैक तो होगा नहीं पहले से, तो हम लोग को स्टैक क्रिएट करना है. क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट फॉर द आउटपुट. नाउ रीड द कैरेक्टर लिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट साइड से राइट साइड में पूरा बनाए एंड परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन से. तो वी हैव टू चेक अगर ऑपरेंड होगा वो क्या कोई कैरेक्टर तो क्या करना है, अपेंड इट टू द एंड ऑफ द आउटपुट लिस्ट वी कैन से. नाउ इफ द कैरेक्टर इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस देन पुश इट इनटू द स्टैक, पुश इट ऑन टू द स्टैक. After that we have to check the right parenthesis, then pop the stack till the corresponding left parenthesis is removed.
then append each operator to the end of the output list, we can say. And if the token is an operator, तो operator को कहाँ पे करना है, तो first move an operator already on the stack that have higher or precedence and append them to the output list. तो पहले चेक करना है, अगर उससे हायर होगा तो उसको पॉप कर देंगे, पॉप करके हम लोग आउटपुट वाले पार्ट में ले आएंगे, और फाइनली वी हैव टू पुश दैट particular part, that what variable part into it, right? So in this way we can do the infix to postfix expression. So evaluation कैसे करना है, तो each operator in postfix string refers to the previous two operands in the string. So each time we read an operand, we push into the stack. If when we reach an operator, so its operands will be top two elements of the stack. So we can then pop these two elements, perform the indicated operation on them, and push the result on the stack, so that it will be available for the use on the next operator. So thank you for watching our video. Please like it, share it, and subscribe it, and do not forget to subscribe it. And finally, next part will be given in the next video for this tech. Thank you.